Welcome students to Avian IAS. I am Dr. Mohammad Zia and we will be continuing with our GS economy part. And yesterday I left at the very basic concept of GDP where I told you that this GDP, that is gross domestic product, is the sum total of all the goods and services produced within the domestic territory of a country in a given accounting year. Now, moving ahead of this, first thing you have to understand before we moving on to this, that we calculate a value. Let's say, as you know, we have aimed that our the size of GDP will be $5 trillion. This is what we expect, that our size of GDP. Now this $5 trillion is the value, is the money value or monetary value. Now when you go in market to purchase certain things, you will always say that two words that you use in general, one is cost, another is price. One what you use is cost, another what you use is price. In general, what you do is you use these words interchangeably. That sometimes you use that आप बाजार में जाते हैं और पूछते हैं भैया इस चीज़ की कॉस्ट क्या है, इस चीज़ की प्राइस क्या है. But in general, in technical definition, there is a huge difference between this. Cost basically refers to the input. Whatever cost, whatever money, whatever money is required in converting an input, that is your raw materials, to output, that is your finished good. So this is let's say we are talking about goods. So this is done in a factory. This is done in a factory, and so if I say cost is the amount which is incurred on making raw materials available in the form of finished goods at the gate of the factory, we call this cost. मतलब कि एक set of raw materials. For example, we are having this marker. Now in making this marker, there could be raw materials like plastic was involved, ink, fiber tape, everything was involved. So everything was brought in as a raw material and उनको हमने फैक्ट्री में बनाया और ये मार्कर. लेकिन जब ये मार्कर, लेट्स से ये हमारी फैक्ट्री है, तो यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल जाता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा आउटपुट जो है या जो हमारा फिनिश्ड गुड है वो अवेलेबल है. अब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, मीन्स इन रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने में कुछ पैसा लगा होगा, वो हमारी कॉस्ट है. लेकिन जब ये मार्केट में आता है, ये आपकी मार्केट से शॉप है, ये फैक्ट्री से शॉप तक आया, आप एज अ कंज्यूमर आप इसका प्राइस पे करते हो. आप एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, आप इसका प्राइस पे करते हो. प्राइस इन द सेंस कि आप इसकी कीमत चुका रहे हो. अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि इस पॉइंट से, फैक्ट्री के पॉइंट से यहाँ तक आने में कुछ पैसा और लगा होगा, कुछ एलिमेंट्स और इन्वॉल्व हुए होंगे. और अगर हम टेक्निकली इस चीज़ की बात करें तो यहाँ पे है सब्सिडीज और टैक्सेस. जैसे मान लीजिए सरकार ये कह दे कि ये मार्कर जो है ये एजुकेशन के पर्पस में यूज़ होता है और तो इसको हम सब्सिडाइज करते हैं. ना बिफोर मूविंग ऑन टू दिस, sideline two important words that you have to understand. One is subsidy, another is discount. कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार लोग कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है या क्या ये सेम है. नहीं, जब अगर इनके वर्ड्स डिफरेंट हैं तो डेफिनेटली इनका मीनिंग भी अलग होगा. कैसे? मान लीजिए हम कहते हैं किसी प्रोडक्ट पे 20% सब्सिडी है या और एक प्रोडक्ट है उस पर 20% डिस्काउंट. मीन्स अगर वो चीज़ उसकी और इसकी कीमत लेट्स से 100 रुपीज़ है. नाउ इन दैट केस
As a customer, how much you will pay? You will pay, let's say, 80 rupees here. Here also you will pay 80 rupees. In both the cases, you will be paying 80 rupees. But producer, in case of discount, he will also be getting 80 rupees क्योंकि उसकी तरफ से दिया गया है. लेकिन सब्सिडी में उसे पूरा 100 रुपये मिलता है. तो उसे क्या मिलता है? उसे पूरा 100 रुपीज़ मिलता है. और ये जो डिफरेंस है 20 रुपीज़ का, ये कौन देता है? ये गवर्नमेंट पे करती है. तो अगर आप जब भी आप सुने कि किसी चीज़ पे, चाहे फर्टिलाइज़र की बात हो, बिजली की बात हो, सिलेंडर की बात हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सब्सिडी अवेलेबल है. और तो वो जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट है वो कौन पे कर रहा है? वो छूट नहीं है उसको, उसके प्रोड्यूसर को तो उसका पूरा प्राइस मिल रहा है, उसके प्रोड्यूसर को उसका पूरा प्राइस मिल रहा है, लेकिन वो जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट है वो कौन पे कर रहा है? वो गवर्नमेंट पे कर रही है. सो यहाँ पे वापस इधर आते हैं. यहाँ पे अब हमारे पास दो चीज़ हो गई. एक है हमारा फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है हमारा मार्केट प्राइस. एक है हमारा फैक्टर कॉस्ट, दूसरा है हमारा मार्केट प्राइस. अब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में अगर हम लेके जाएं तो क्या होता है? टैक्सेस हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस. अभी नई चीज आ जाएगी. एक आता है डायरेक्ट टैक्स, एक आता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स वो होता है, इसको अभी जब हम आगे मैं आपको टैक्सेशन सिस्टम समझाऊंगा, आई टेल यू इन डिटेल आउट देयर, बट जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रेफरेंस जस्ट रिमेंबर वन थिंग. डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स जब जिस पर टैक्स लग रहा है वही पे कर रहा है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स. फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स मुझ पे, मैं इनकम कमा रहा हूँ, मेरी इनकम पर टैक्स लग रहा है और पे भी मैं ही कर रहा हूँ, ये हुआ डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स लगता किसी और पे और पे कोई और करता है. फॉर एग्जाम्पल जीएसटी. जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है. क्यों? वो लग कहीं और रहा है, वो डिफरेंट स्टेजेस पे लग रहा है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन पे लग रहा है, लेकिन उसको पे कौन कर रहा है? एज अ कस्टमर, एज अ परचेजर मैं पे कर रहा हूँ. मीन्स यहाँ डायरेक्ट टैक्स मीन्स जहाँ पे टैक्स लग रहा है वही पे कर रहा है, जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वही है, तो इट इज डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी और पे है, पे कोई और करता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्या करेंगे? दो चीजें आ गई. एक आ गई हमारे पास सब्सिडी, एक आ जाता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा? सब्सिडीज जब यहाँ पे आएगा तो सब्सिडीज क्या हो जाएगी? माइनस आ जाएगा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे? प्लस. तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडी को डिडक्ट करके, फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडी को डिडक्ट करके इनडायरेक्ट टैक्सेस या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाता है? मार्केट प्राइस. तो अब इस जीडीपी की अगर हम बात करें तो इसके हमें दो डिफरेंट पैरामीटर्स मिल जाते हैं. पहला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर किसी चीज की ग्रॉस वैल्यू अवेलेबल है, अगर किसी चीज की ग्रॉस वैल्यू अवेलेबल है तो उसकी नेट वैल्यू भी होगी. ध्यान रखिएगा इस बात का. अगर किसी चीज की ग्रॉस मीन्स इन टोटल, ग्रॉस मीन्स इन टोटल, तो किसी की अगर ग्रॉस वैल्यू अवेलेबल है तो उसकी नेट वैल्यू भी होगी. तो ये जो ग्रॉस और नेट, ग्रॉस को आप ऐसे समझ लीजिए कि टोटल, और नेट को आप समझ सकते हैं एक्चुअल. तो इनकी जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है इस ग्रॉस का और इस नेट का, इस कंटेक्स्ट में वो है डेप्रिसिएशन. वो है डेप्रिसिएशन. एक और नया टर्म,
दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार खरीदी, एक बाइक खरीदी, है ना, और लेट्स से आपने एक बाइक खरीदी, उसकी आपने उसके प्राइस पे किया 50,000 रुपीज़, फाइन। लेट्स से दिस वाज इन 2020। एक साल बाद आज 2021 में क्या इसकी आपकी जो आपने बाइक खरीदी है उसकी वैल्यू 50,000 रुपये ही है? नहीं, कुछ तो कम हुआ होगा, लेट्स से 45,000 हो गई। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसको चलाया, उसके टायर्स यूज़ हुए होंगे, उसका इंजन यूज़ हुआ होगा, उसका पॉलिश उतरा होगा, एन नंबर ऑफ थिंग्स। इसको अगर हम सिंपली कहें तो हम इसे कहेंगे वियर एंड टियर लॉसेस। वियर एंड टियर लॉसेस मतलब जो भी उसका यूजेज हुआ, पॉलिश उतरा, पेंट एंड एवरीथिंग। आप बेसिकली तो ऐसा हर प्रोडक्ट के साथ होता है, हर गुड के साथ होता है। अगर वो ड्यूरेबल है, लॉन्ग पेरिशेबल नहीं है, ड्यूरेबल आइटम है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, तो उसके साथ ये वियर एंड टियर लॉसेस होंगे। इसीलिए डेप्रिसिएशन जो है हम ग्रॉस में से, अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें नेट वैल्यू मिल जाएगी। अनदर इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो जीडीपी में से माइनस अगर हम डेप्रिसिएशन कर लेंगे तो हमें मिलता है एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस एनडीपी के भी, इस एनडीपी जीडीपी के हमने कितने पढ़े? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसी से हम एक और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसी वैल्यू से। अगर किसी चीज़ की डोमेस्टिक वैल्यू है, तो जैसे डोमेस्टिक होता है और फिर नेशनल टीम होती है, एक डोमेस्टिक टीम होती है, एक नेशनल टीम होती है। क्रिकेट जो लोग इंटरेस्ट रखते होंगे वो देखते होंगे। तो अगर यहाँ पे कोई डोमेस्टिक अवेलेबल है, डोमेस्टिक है, तो उसका एक नेशनल कंपोनेंट भी होगा। और उसको अगर हम जीडीपी के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम यहाँ कहेंगे उसे GNP, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज, अगर GNP की मैं डेफिनेशन कहूँ तो GNP इज अगेन द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स। यहाँ आपको GNP में जब हम GNP की बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज याद रखनी होगी। GDP में हमने पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट द डोमेस्टिक टेरिटरी, बट हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट हियर इट इज नॉट डोमेस्टिक टेरिटरी, इट इज बाय नॉर्मल residents. It is by normal residents. So brought it by the whatever goods and services उस जो भी उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे विद इन अ ईयर, हम उसको कहते हैं क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें हो सकता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एरा है एंड वी हैव वेरियस बहुत से ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो बहुत से ऐसे इंडियंस होंगे जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो वहाँ से पैसा कमाते हैं, वो हमारे घर भेजते हैं। ऐसे ही बहुत सारे विदेशी लोग होंगे, फॉरेनर्स होंगे, फॉरेन नेशनल्स होंगे जो इंडिया में काम कर रहे होंगे और वो यहाँ से पैसा बाहर भेज रहे होंगे। तो मतलब पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन को इस को हम जो रेमिटेंसेस जिसे हम कहते हैं, तो इसको हम सम अप करते हैं एंड दैट वी कॉल एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट क्यों? क्योंकि पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है, इसीलिए नेट वैल्यू। तो हम दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उसको वैल्यू लेंगे। मीन्स GDP प्लस माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इज इक्वल टू
GNP। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस दोनों का साइन यूज़ करने का पर्पज़ ये है क्योंकि हो सकता है ज़्यादा पैसा आया हो, कम पैसा बाहर गया हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ज़्यादा पैसा बाहर गया हो, कम पैसा आया हो तो वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसीलिए हमने यहाँ नेट वैल्यू यूज़ कर ली, ठीक है। नाउ सो GNP की अगर बात करें तो ये भी मार्केट प्राइस पे भी होगा, GNP ये फैक्टर कॉस्ट पे भी होगा, और अगर इसकी ग्रॉस वैल्यू है तो इसकी नेट वैल्यू भी होगी और वो भी मार्केट प्राइस पे भी होगी, और NNP at factor cost. Now you must have heard about the term national income. Must have heard about the term national income. कि नेशनल इनकम एक वैल्यू हमें मिलती है और ये वैल्यू क्या होती है, दिस इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो हम अगर हमें GDP की वैल्यू पता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि हमारी GDP का जो साइज़ है वो $5 ट्रिलियन है, हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो $5 ट्रिलियन है, तो उसमें से लेट्स से अगर वो मार्केट प्राइस पे इतना है तो हम अगर उसको NNP एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट आप क्या करोगे, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करोगे बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो, या फिर आप डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करोगे, कैसे, बाय डिडक्टिंग NFIA। देन व्हाट यू विल डू, आप मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करोगे, दैट इज by adding taxes and deducting subsidies, so you will get a value that is net national product at factor cost, and this value, whatever value will get out here, that is your national income. That is your national income. So this is about the very generic, very basic, fundamental concept about GDP. But what has happened that we have actually changed. 2015 में हमने इसका थोड़ा सा इसके पैरामीटर्स में, इसके कंपटीशन में इंडिया ने कुछ चेंज किया है ना, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए हमने इन चीज़ों को डिसीजंस लिए हैं। व्हाट आर दोज चेंजेस, हाउ दैट इज कॉम्प्यूटेड, हाउ दिस नेशनल इनकम इज डिराइव्ड, दिस विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम and I'll see you in the next session. So thank you so much.